हाउ आर यू? सब लोग कैसे हैं? I hope everyone is fine. So today we are setting up with another crash course, that is Code Sprint. That is a Python crash course which is for NSM. The duration will be around 20 to 30 days. The language that we will use is English, and it is a collaboration with IIT and TFF. So basically, I'll tell you about IIT. IIT is Institute of Artificial Intelligence and Technology. We are focused on empowering young coders of India in their own language. So I'm the founder of IIT, Mr. Memangshu Mahanta. I'm a certified game and app developer, a trained in artificial intelligence and machine learning from IIT Roper, a WHO certified digital champion, and have worked as a program manager of MTron internship program, Government of Assam. Uh, Basically, when I'm going to say about more about our venture, I'll talk about the co-founder of IIT, who is Dr. Kamaljyoti Gogoi. He is the former secretary of SEBA or AHSCC, which is the government board of education board of Assam. So basically, if I say about the story of IIT, we have seen students like Anirban and Ellen. Both आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड हम लोग ने ये देखा है कि मतलब सबको सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं. सो लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए हम लोगों ने ये वेंचर शुरू किया है एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग विथ एंड वी आर आल्सो द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट असमीज ऑनलाइन एआई एंड प्रोग्रामिंग कोर्स एज वेल. So today we have collaborated with TFF, the first flight touch the sky with glory. So here's on to Mr. Shivam Rai. Thank you. प्रेजेंटेशन अपनी मुझे पता है, मैं अपने माइक से बोलूंगा. Just a second. You can start. Good evening, everyone. My name is Shivam Rai. I'm the founder of the First Flight. So, what is the First Flight? Basically, हम लोग एरो मॉडलिंग के वर्कशॉप कराते हैं, आपको आरसीए के वर्कशॉप में सिखाते हैं. हमारा ऑपरेशन अभी तक भोपाल में था, वी आर एक्सटेंडिंग टू दिल्ली. दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव जो हम मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए. ये उसी की एक पहल है. सो आई एम शिवम राय. मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें. आई एम कोडिंग सिंस 5th क्लास. मेरी कोर प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज है पाइथन में, सी शार्प एंड जावास्क्रिप्ट. I will be teaching you Python occasionally, and the other script will be Memangshu Mahanta. I have also worked at United Nations Information Center. I have taught more than 100 students, and I have won several hackathons. So that's that. I've already told you about my company, and that's it. We will have fun in this course, and we will learn a lot. Thank you. Let's continue. Okay, so here's Shivam Rai. He is the founder of the First Flight, and it's a lovely introduction, Shivam. And we are very honored to have you with us. And today I'm really honored that we are going to start the code sprint, which we were planning from kind of like several days. And my friends were like, "Why don't you start one another crash course where you like teach the concepts as well?" So here we are starting with code sprint. And let me tell you the main thing that we'll be providing is certification. You will get a certificate at the end of this course, and the certificate is going to be valid as our company is registered, and full syllabus will be covered of Bennett University. Extra doubt sessions will be covered by Mr. Shivam Rai. Lifetime access to course material as well. Okay, so let's begin. We have taken a few time with the introductionary. And now let's begin with the first topic that we have, that is token. And maybe you guys remember when we came to Bennett, we have like seen the same page, similar kind of page. Like the teacher was teaching us tokens, right? So अगर हम टोकन के बारे में बात करें तो हम लोग को पहले ये समझना है कि टोकन्स है क्या. टोकन्स है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, वो सबसे छोटा इंडिविजुअल है. सो हम लोग ये कोड देख रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता,
ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में जो सबसे छोटा इंडिविजुअल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टोकन और ए लेक्सिकल यूनिट, उन दोनों में से कोई एक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोकन्स ना अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब देखो, ये पूरा एक कोड है। दिस इज ऑल्सो ए टोकन, फॉर इज ऑल्सो ए टोकन, A1 इज ऑल्सो ए टोकन, इन इज ऑल्सो ए टोकन, range is also a token, if is also a token. So everything, every particular letter, sorry, every particular like word or maybe number, that is a token. So here token are of different types. The first type is keywords, the second type is identifiers, the third type is literals, fourth is operators, fifth is punctuators. So when I am going to talk about the keywords, a keyword is a word having special meaning reserved by programming language. इसका मतलब ये है कि कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है जो रिजर्व करके रखता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजर्व करके रखता है। मतलब देखो, अभी हम लोग ना अगर कोडिंग करने जाए, सो आई विल शो यू। हम लोग पहले हमेशा एक वेरिएबल बनाते हैं। सोचो कि a इज इक्वल टू 1 कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं a का वैल्यू 1 सेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो a दिया, ठीक है, a के जगह में अभी यहाँ पे फॉर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? ये देखो, फॉर का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि फॉर एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसको रिजर्व करके रखा है। So that's why we say कि a keyword is a word having special meaning reserved by a programming language। एक programming language उसको रिजर्व करके रखा है, उसको तुम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल मैंने जो यहाँ पे यूज किया कि a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे a क्या है? एक वेरिएबल है। तो उसमें हम लोग ये यूज नहीं कर सकते, इसी का मीनिंग यही है। ठीक है, कीवर्ड्स का मीनिंग यही है। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर, यही मैंने बोला, आइडेंटिफायर हिसाब यूज नहीं कर सकते। ओके। Also in between I would like to like mention that we will use VS code after some time, maybe not today, but from tomorrow we will be using VS code regularly. Okay, so this is the first type of token. So when I've talked about token, the smallest individual of a code, यही क्या होता है? एक टोकन होता है। और ये टोकन बहुत प्रकार के हैं। एक है कीवर्ड, मैंने कीवर्ड के बारे में बोला। दूसरा क्या है? हमारा आइडेंटिफायर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स क्या है? अभी आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, नाम को। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एक पार्ट को मैंने नाम दे दिया, वही है उसका आइडेंटिफायर। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को मैंने कहाँ पे सेव किया? ए में सेव किया। इसका मतलब ये है ए इज ए आइडेंटिफायर। ए इज आइडेंटिफाइंग एज ए स्टोरेज एरिया वेयर 1 इज सेव्ड, दैट्स इट। तुम ऐसे मतलब समझ सकते हो ऐसे इस चीज को। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है? नेमिंग रूल्स। अभी इस आइडेंटिफायर का ना एक रूल है, तुम जैसे तैसे तुम उसको मतलब लिख नहीं सकते। मैंने ए लिख दिया, अभी यहाँ पे मैं 1A लिखूंगा ना, ये गलत होगा, देखना। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा 1A, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इट इज गोइंग टू गिव अस एरर। 1A is equals to 1, it is wrong, error देगा। just a second। बट अभी अगर यहाँ पे मैं सेम चीज A1 करके लिखूं, A1 is equals to 1, it is going to be correct। इसका मतलब ये है कि हम लोग डिजिट्स को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, इनिशियली हम लोग डिजिट्स नहीं लिख सकते। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर व्हेन वी आर सेटिंग ए वेरिएबल। जब एक नाम दे रहे हैं किसी एक चीज को, तो वो हम लोग को पहले याद रखना है कि हम लोग स्टार्ट एक नंबर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लेटर दे सकते हैं हम लोग, पहले पहले हम लोग अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज? फर्स्ट थिंग इज लेटर्स, द सेकंड थिंग इज अंडरस्कोर, एंड द थर्ड थिंग इज नंबर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हम लोग ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, लेटर, नंबर एंड आइडेंटिफायर्स। द सेकेंड थिंग, नंबर हम लोग पहले यूज नहीं कर सकते। वी कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। 1A नहीं लिख सकते, 2A नहीं लिख सकते हैं, वी कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। दैट इज द सेकेंड थिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल नेम्स मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड वर्ड्स, ये एक तीसरा है। ठीक है, तीसरे में क्या बोला? द वेरिएबल नेम्स मस्ट
only be in non keyword word. अभी कीवर्ड हम लोग ने पढ़ा था कि कीवर्ड क्या है, ये सारे है ना कीवर्ड है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है, फॉल्स, assert, del, for, ये सब कीवर्ड्स है, एंड दीज आर रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी इन वर्ड्स को तुम यूज नहीं कर सकते, इन वर्ड्स को तुम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अभी मैं यहाँ पे फॉर यूज नहीं कर सकता, देखना, मैं ए के जगह में फॉर यूज नहीं कर सकता। इसमें गलत क्या है, हमने तो सिर्फ लेटर्स लिए है, लेकिन फॉर इज रिजर्व बाय दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए हम मैं इसको यूज नहीं कर सकता। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड दैट आर द रूल्स ऑफ setting an identifier. Okay, so we have learned this, and the one more thing, यहाँ पे था हम लोग का, ओके, द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, ये हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स है, एंड दीज आर सम अनवैलिड आइडेंटिफायर्स। ये वैलिड है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लेटर्स है, इसमें भी लेटर्स है, वैलिड। इसमें लेटर्स एंड अंडरस्कोर है, वैलिड। इसमें लेटर्स, नंबर्स, ये सब है, वैलिड है। इसमें लेटर्स है, नंबर्स है, अंडरस्कोर है, वैलिड, इसलिए अंडरस्कोर लेटर्स वैलिड, लेटर्स नंबर्स वैलिड, तो इसलिए ये वैलिड है। ये अनवैलिड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक हाइफन आ गया, एंड दैट्स रॉन्ग। हम हाइफन नहीं डाल सकते, मैंने अभी बोला था कि हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, हाइफन नहीं डाल सकते, सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ये वाला क्यों रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, स्टार्टेड विथ ए डिजिट, डिजिट से स्टार्ट कर दिया। ब्रेक क्यों रॉन्ग होगा, ब्रेक तो सिर्फ लेटर्स है, ये क्यों रॉन्ग है, बिकॉज इट इज ए कीवर्ड, ये क्या है, एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। माई डॉट फाइल, डॉट, मैं डॉट यूज नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लिटरल्स और वैल्यूज। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कि टोकन्स के बारे में, कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के सारे पार्ट्स को मैं फॉर, A1, इन, रेंज, वन, कॉमा, इन सबको मैं टोकन्स बोलता हूँ। और ये टोकन्स 5 प्रकार के हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ लिया, एंड नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स आर नथिंग एल्स बट द नंबर्स। लिटरल्स क्या है, नंबर्स है, ठीक है। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू, जिसका एक फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि वन, वन इज फिक्स्ड और दैट इज ए कांस्टेंट, वी कैन से, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर A1 इन रेंज 1, 10, 1 is literal, 10 is literal, 0 is literal, so numbers are literals, that's it, that is all that you have to know। अभी लिटरल्स का ना अलग अलग टाइप्स है, ओ माय गॉड। हम लोग ने देखा कि टोकन्स के तो टाइप्स है, अभी लिटरल्स के भी टाइप्स है। लिटरल्स के 4 टाइप्स है, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल नॉर्म। सो ये 4 टाइप्स के हमारे पास लिटरल्स है। पहला क्या है हम लोग का, स्ट्रिंग लिटरल। सो स्ट्रिंग लिटरल कैसा है, मैं देखता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा है, दैट इज ए स्ट्रिंग, दैट इज ए स्ट्रिंग, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रिंग लिटरल। अभी एक स्ट्रिंग भी तो कांस्टेंट ही बोल सकते हो, वो तो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज आल्सो ए लिटरल, एंड दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग लिटरल। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ओके, स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं उसको, अलग से नाम दिया है बस। कोटेशन के अंदर अगर तुमने कुछ भी लिखा है, that is known as string, that's it, nothing else। Okay, so a string literal is a sequence of characters surrounded by quotes। sequence of characters, character है ना, h is a character, e is a character, उसका एक sequence, मतलब एक character के बाद एक, एक character के बाद एक, so that is a sequence of characters surrounded by quotes। quotes के अंदर surround करके रखा है। और ये दो types के हैं, single line string, single line में लिखा है, multi line string, मल्टी लाइन में लिखने के लिए हम लोग हेलो लिखेंगे, उसके बाद राइट साइड में ऐसे हुआ, ऐसा वाला हम लोग स्लैश देंगे एंड वर्ड दिया उसके बाद। सो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने नेक्स्ट लाइन भी दिया ना, तो मल्टी लाइन हो गया, मतलब 2 लाइन में हम लोग ने लिखा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सो 2 लाइन में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोट्स यूज करके भी हम लोग 2 लाइन में लिख सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज इट फॉर लिटरल्स। ओके, सो लिटरल्स का मैंने स्ट्रिंग वाला पार्ट पढ़ा है तुम लोग को। अभी न्यूमेरिक लिटरल्स, व्हाट आर न्यूमेरिक लिटरल्स, ए न्यूमेरिक लिटरल आर न्यूमेरिक वैल्यूज, आर न्यूमेरिक वैल्यूज। अभी हम लोग ने नंबर्स देखा, 1, 10, एनीथिंग, 0, सो दोज आर न्यूमेरिक लिटरल्स। अभी न्यूमेरिक लिटरल्स भी अलग अलग टाइप के हैं। देखो, 0 इज ए इंटेजर, बट 0.1 दैट इज ए फ्लोट नंबर,
फ्लोट नंबर, डेसिमल नंबर को ही फ्लोट नंबर बोलते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डेसिमल नंबर को ही फ्लोट नंबर बोलना शुरू कर दो बस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम फ्लोट बोलो उसको, ठीक है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर लेटर्स है, व्हिच इज नॉट कमिंग, नॉट एट ऑल कमिंग इन योर एग्जाम, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ लाइक मोर ऑफ वन लेवल up. Just a second, just a second guys. Right, आप बाहर आ जाओ। Okay, so what I was talking about, that literals are of three types: integers, float and complex numbers. But complex number हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है. Integers तो हम लोग जानते ही है, 0 1 2 3 4 anything. Okay, and float points are like 1.2 2.3, so any point number that is a float. Even 1.0, 1.0 तो हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, but लिख सकते हैं 1.0 पॉइंट आ गया ना, so that is a float point literal. Float point literal, that's it, that's it. Okay, अभी लिटरल्स और वैल्यूज में हम लोग ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आईएनटी, साइन इंटीजर्स, ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर्स, और आईएनटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट। सो डेसिमल पॉइंट के बिना जो भी नंबर्स है उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द इंटीजर लिटरल्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। इंटीजर लिटरल्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑक्टल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट आई वुड से जिसको फर्दर पढ़ना है वो ये चीज पढ़ सकता है, बट फॉर द वंस हु आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम, उन लोग को ये चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी लिटिल बिट हायर लेवल। ओके, सो न्यूमेरिक लिटरल्स हम लोग ने देख लिया, पॉइंट का भी मैंने बता दिया और उसका भी बता दिया, इंटीजर्स के लिए भी बता दिया। सो नेक्स्ट इज बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स, इट इज इंटरेस्टिंग। अभी देखो, कंप्यूटर्स ना 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं समझते। मैंने बैकग्राउंड भी ऐसा लिया ना, कुछ 1 0 1 0 सा, है कि नहीं। सो लाइक द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स एज 0 एंड 1, एंड व्हाई इज दैट। हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कंप्यूटर में क्या है, चिप्स एंड ऑल ये सब है, एंड इसमें ना ये इलेक्ट्रिक बोर्ड ही तो है। इसमें ऑन एंड ऑफ के अलावा इसको कुछ समझ नहीं आता, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अभी ऑन को हम लोग ने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, ऑफ को मैंने बोल दिया 0। एंड ये ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, वो हो गया 0 1 0, 0 0 1 1 1 0 0। सो दीज आर लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरोस बा ऑन और ऑफ, है कि नहीं। सो उसी को हम लोग ट्रू एंड फॉल्स भी बोलते हैं, कि 1 इज ट्रू 0 इज फॉल्स, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। सो द ट्रू इज बुलियन, false is also boolean. So in true the t will be capital, in false the f will be capital. So ये हम लोग के हो गए बुलियन। सो बुलियन कैसा होता है, देखो अभी मैं इसके अंदर ना, ए के अंदर मैं ये e, सो देखो ये ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब यही है कि दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज ए बुलियन। अगर मैं इसको कोटेशन के अंदर डाल दूं तो ये बन गया मेरा स्ट्रिंग, है कि नहीं। सो अगर मैं कोटेशन ना दूं एंड टी को कैपिटल रख के TRUE लिखूं तो ये हो गया मेरा बुलियन, इसको बुलियन बोलते हैं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉल्स, फॉल्स इज ऑल्सो ए बुलियन। बट अगर मैं एफ स्मॉल रखूं तो दिस इज नॉट ए बुलियन, दिस इज नॉट ए बुलियन नम लिटरल, बट दिस इज ए बुलियन लिटरल। इसका यूज कहाँ है मैं दिखाता हूँ। अभी मैं अगर करूँ प्रिंट, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि 1 के इक्वल है क्या, 2 बार इक्वल दिया है, ठीक है। 2 बार इक्वल देने का मतलब ही ये है कि ये दोनों इक्वल है क्या, मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर से। 2 बार इक्वल दिया है मतलब मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर से, 1 बार इक्वल दिया है मतलब मैं बोल रहा हूँ हाँ इक्वल है। लेकिन 2 बार दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इससे पूछ रहा हूँ ये बताएगा कि ये yes or no, it will answer in yes or no, and that is true or false. He will either say true or maybe false, true बोल दिया, and here t is capital, so this is a boolean, this is a boolean, this is a boolean। Okay, इसको boolean बोलते हैं, true और false को boolean बोलते हैं, nothing else, nothing else, don't take it very like उस तरीके से मत लो। एंड देयर इज वन थिंग मोर, दैट इज नन। नन का कुछ काम नहीं है। पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल व्हिच इज नन। द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब देखो 0 भी एक वैल्यू है,
जीरो इज ऑल्सो ए वैल्यू एंड जीरो इज ए न्यूमेरिक लिटरल, राइट? उसको इंटीजर बोलते हैं हम लोग। बट अगर कुछ भी ना हो, ना स्ट्रिंग है, ना इंटीजर है, ना फ्लोट है, नथिंग, ना बुलियन है, इन दैट केस दैट इज नन। अगर एक अम, अगर एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके अंदर क्या है हम बोलते हैं? नन है बोलते हैं, एन ओ एन ई, एंड एन इज कैपिटल, द फर्स्ट एन इज कैपिटल हियर। ओके, सो अगर कुछ भी ना हो, बट हम लोग सोचते हैं कि अच्छा जीरो है मतलब कुछ भी नहीं है। नो, जीरो इज ए वैल्यू, जीरो इज ए वैलिड वैल्यू। ओके, जैसे कि -1 वैल्यू है कि नहीं? वैसे जीरो भी एक वैल्यू है। बट नन, नन का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है, इट इज एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ऑपरेटर्स। या, दैट इज इंटरेस्टिंग, ऑपरेटर। सो हम लोग ने देखा था कि हम लोग के टोकन्स बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, है कि नहीं? सो टोकन्स अलग अलग प्रकार के हम लोग ने देखे, 3 देखे अब तक। ठीक है, लिटरल्स देख लिया हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिफायर्स, हम लोग ने कीवर्ड्स देख लिए, एंड द फोर्थ वन दैट इज ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स आर आल्सो वेरी इजी। तुम लोग जो ये सिंबल्स देखते हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मॉडुलस, डबल स्टार, डबल स्लैश, एंड उसके बाद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, एंड, और ये सब क्या है? ऑपरेटर्स है। अभी ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के भी है। द फर्स्ट ऑपरेटर इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस इज ए एरिथमेटिक ऑपरेटर, माइनस इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेटर इसको अलग अलग क्यों किया है? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम ये है कि कुछ मैथमेटिक्स के काम करेंगे, कि लाइक 1 + 1 करना है, तो इसमें हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर का काम लेंगे, दैट इज प्लस। माइनस का काम लेंगे, इंटू का काम लेंगे, दिस इज डिवाइड, दिस इज मॉडुलस। इन सब का काम क्या है मैं वो भी दिखाऊंगा अभी आप लोग को। ठीक है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ all of this, all of this? Okay, we'll copy for now, एंड हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सारे काम देखेंगे एक बार, फॉर वंस। ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स दैट वी नीड टू चेक फॉर नाउ। ओके, लेट्स गो। सो मैंने बोल दिया ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, प्लस का काम क्या है? नॉर्मल प्लस। ठीक है, प्रिंट ए माइनस बी। ओके, मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि इतना बेसिक, बट देखो कोई कोई है जिसको बेसिक भी नहीं आता, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, एंड ऑल्सो वी विल टच द लेवल दैट यू आर लाइक डूइंग। ओके, आप लोग जो जिस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो हम लोग को पता है, हम लोग ने देखे हैं क्वेश्चंस, एंड आई नो इट्स हार्ड फॉर फ्यू ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, आई विल से, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है कि मतलब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ तो टीचर्स नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा सुनाई दिया है। सो लाइक इट्स ओके, आई हैव बीन कोडिंग फॉर years। उसके बाद मतलब उसके बाद भी ये इंटरमीडिएट लेवल्स के लग रहे हैं क्वेश्चन, so obviously it's going to be hard for you guys, but yeah, what we can do is work hard right now. Okay, so okay, and next we are going to check into, right, the multiplication symbol is this star symbol. Okay, remember that, a multiplied b. Okay, print a divided by b. Okay, simple divide, right? Okay, मॉडुलस, उसके बाद क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस का काम क्या है? दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। ए मॉडुलस बी, इसका काम ये है कि तुम ए को बी से डिवाइड करो। ए का वैल्यू क्या था? 5, 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ए को बी से डिवाइड करो। इस यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं यहाँ पे, वैल्यूज चेंज करते हैं ना यहाँ पे, 6 यहाँ पे 5 दे देते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि a डिवाइडेड बाय b, a 6 है मतलब 6 डिवाइडेड बाय b करेंगे, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद क्या होगा देखना। हाँ, हम्म, मैं ये चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। a को मैंने b से डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? a का वैल्यू था मेरा 6, b का वैल्यू था मेरा 5, राइट? सो आई डिवाइड इट, 5 1s are 5, and the remaining is 1, right? Remaining is 1, and the modulus function, sorry, modulus operator, it will exactly return the remainder. क्या देगा? ये remainder देगा। So it was like
6 मॉडुलस 5, राइट? इसका मतलब यही है ना, ए मॉडुलस बी, इसका मतलब ये क्या था, 6 मॉडुलस 5। इसका मतलब ये है कि 6 को 5 से डिवाइड करो, उसके बाद रिमाइंडर दे दो, है कि नहीं? रिमाइंडर दे दो। ओके, दैट्स ऑल। ओके, मॉडुलस का काम ये है। एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि हाँ, डबल स्टार का मतलब है ए टू द पावर टू, टू कर दिया। ए का वैल्यू क्या था, 6, तो 6 टू द पावर 2, 6 6 36, इट इज गोइंग टू गिव अस 36। नेक्स्ट प्रिंट डबल स्लैश, ओके, ए डबल स्लैश बी, इसका मतलब ये है कि ए को बी से डिवाइड करो एंड उसका आंसर जो आया है उसमें से पॉइंट का वैल्यू हटा दो, दैट्स इट, पॉइंट का वैल्यू हटा दो। ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस। सो क्या आया, a plus b, which is a was 6, b was 5, so 6 plus 5 that is 11, right? आ गया, माइनस का भी 1 आ गया, ऑब्वियस, राइट? a into b, 6 into 5, 6 5 is 30, राइट आंसर। a divided by b, इसका मतलब ये है कि 6 divided by 5, 6 divided by 5 जब करेंगे हम लोग का आएगा 1.2। ए मॉडुलस बी, इसका मतलब ये है कि ए को बी से डिवाइड करो, उसके बाद रिमाइंडर दो, हम लोग ने अभी करके देखा था, रिमाइंडर आया था 1, एंड दैट्स द आंसर हियर, राइट? उसके बाद हम लोग का यहाँ पे है ए टू दी पावर 2, डबल स्टार का मतलब है टू दी पावर, ओके, ए टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 2, 6 6 जा 36, 36 आ गया। ओके, ए डबल स्लैश बी, डबल स्लैश बी, डबल स्लैश का मतलब ये है कि तुम डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद देखो, डिवाइड कौन सा था, 1 2 3 4, फोर्थ वन, राइट? सो 1 2 3 फोर्थ वन, इन द फोर्थ वन इट इज 1.2, सो पॉइंट का जो वैल्यू है वो हटा दो, 0.2 हटा दो, 1 इज 1 रहेगा, ठीक है? जब डबल स्लैश देंगे ना, पॉइंट का जो वैल्यू है वो हट जाएगा, ओनली द इंटीजर विल रिमेन, एंड वही यहाँ पे प्रिंट हो गया, दैट्स इट। अभी जैसे कि a जब मैं b से डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा, 1.2 आएगा, लेकिन डबल स्लैश डाला है ना, सो 0.2 विल नॉट अपीयर, ओनली 1 विल अपीयर। ओके, so these are all for arithmetic operators. Next we are talking about bitwise operator, bitwise operators क्या है, and उसके बाद दिस सिंबल वी ऑल नो फॉर लाइक टू दी पावर एंड ऑल, ठीक है, एंड नॉर्मल वन, सो ये हम लोग को नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है? शिफ्ट ऑपरेटर्स ऑल्सो हम लोग को अभी नहीं चाहिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, यस वी नीड दिस, बट वी विल लर्न अबाउट इट मोर व्हाइल वी आर कोडिंग, हम लोग जब कोडिंग करेंगे तब इसका यूज आप लोग को पता चल जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन निकालते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है वो देखना है मुझे, है कि नहीं? ए इज स्मॉलर देन बी है कि नहीं वो देखना है, उसके लिए काम आता है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी है कि नहीं वो देखने के लिए काम आता है। ऐसा, ऐसे कामों के लिए मुझे ये काम आते हैं, ठीक है? सो ये दिखाता हूँ मैं। जैसे कि अब देखो, ए का वैल्यू फिर से 6 दे दिया मैंने, बी का वैल्यू मैंने दे दिया 5, ओके? सो इसमें क्या होगा, देखो कि ए प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्या? हाँ है, ए का वैल्यू 6 है, बी का 5 है, हाँ बड़ा है, तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, बुलियन में ट्रू आ गया, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। देखो ट्रू प्रिंट हो गया। अभी मुझे फिर से देखना है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या, ए बी से बड़ा या फिर इक्वल है क्या, हाँ है, ट्रू आएगा। देखो अभी मुझे देखना है कि इफ ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है क्या, नहीं है, फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स आ गया। सो दिस इज हाउ द रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क। ये रहा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, एज सिमिलर एज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे होंगे, या फिर मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आप लोग को ऐसे भी। अब देखो, मुझे ये देखना है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, और ए इज ग्रेटर, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि ए बी से बड़ा है या फिर ए बी से इक्वल है क्या, मैं पूछ रहा हूं उससे, ए बी से बड़ा है या फिर इक्वल है क्या? अगर हाँ, इसमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि और लगा हुआ है ना, तुम खुद सोचो, और लगा हुआ है, इसमें मैंने पूछा ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके बाद ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है? लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाओ, और बताया है इसने, नॉर्मल इंग्लिश लगाने से समझ आ जाएगा ये तुमको।
ठीक है। सो और लगा है, तो इसमें से अगर एक भी ट्रू हो, सॉरी, इसमें से, हाँ, इसमें से अगर एक भी ट्रू हो गया तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। सो ए इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है तो इसलिए ये ट्रू आ गया, फर्स्ट वाला। ठीक है। अगर मैं इसमें एंड लगा दूं, एंड मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी होना पड़ेगा, और ए इक्वल टू बी, ये दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ये ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। ये देखो फॉल्स आ गया, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है, दैट्स वाई फॉल्स आ गया यहाँ पे। Okay, so this is all about uh, relational operators and logical operators. Next we are seeing on assignment operator. Assignment operator तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, हम लोग ने पहले क्या किया था, a is equals to 6, here is equals to is असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन कर रहे हैं हम 6 को, किसको असाइन कर रहे हैं, ए को असाइन कर रहे हैं, है कि नहीं। सो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ऑल्सो देयर इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स लाइक इन, नॉट इन। सो ये सब भी हम लोग जब कोडिंग कर रहे होंगे क्वेश्चंस, तब हम लोग अच्छे से देखेंगे, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, उनके नाम ये है कि डोंट नीड टू मेमोराइज इट particularly, but you should know. Okay, so and we come with the last kind of tokens, that is punctuators. Okay, अभी punctuators ना बहुत ज्यादा ही इजी है, मैं बोलूंगा, इसको याद रखना। अब देखो, हमारे कीबोर्ड में ना लेटर्स और नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स है कि नहीं। जैसे कि ब्रैकेट हो गया, है कि नहीं, ब्रैकेट हो गया, हैशटैग, स्लैश, कोटेशन, एट द रेट, राइट, कॉमा, ये सब हो गए हमारे पंक्चुएटर्स। ठीक है। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से that are symbols. Okay, okay, and the last thing that we are going to talk about today, that is bare bones of Python programming. Bare bones of Python programming. अब देखो bare bones क्या होता है, bare bones का मतलब ये है कि एक पाइथन के प्रोग्राम का बैकबोन क्या है। एक बैकबोन क्या है, मतलब प्रोग्राम में रहेगा क्या क्या। एक तो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन होता है, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, फंक्शंस, ब्लॉक्स और सूट्स। अभी एक्सप्रेशन क्या है, expressions are something that are legal combinations of symbols that represent a value। ठीक है। अब ये अच्छे से देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है अच्छे से एक्सप्रेशन, देखो a is equals to 15, b is equals to a minus 10, राइट, दीज आर एक्सप्रेशन, मैंने एक लाइन पे लिखा है एक्सप्रेशंस। हम लोग मैथ्स में देखते हैं सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर सोचो, मैंने बोल दिया कि बी का वैल्यू बोल दिया, अभी ए का वैल्यू फाइंड करो, ऐसे बोलते हैं ना एक्सप्रेशन, ए प्लस 3 दैट इज एक्सप्रेशन, राइट, बी इज ग्रेटर देन 5 दैट इज एक्सप्रेशन, है कि नहीं। सो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन ऐसे बोलते हैं मैथ्स में, तो ऐसे एक्सप्रेशन रहते हैं, एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। ओके, स्टेटमेंट्स which are programming instructions, these are programming instructions, statements। अभी statements देखते हैं, statements, where are statements, let me find them। okay, these are statements। अब देखो एक्सप्रेशंस कौन से हैं, ये 15 एक्सप्रेशन है, a minus 10 is expression, a plus 3 is expression, but this particular whole line is a statement, this whole line is a statement, this whole line is a statement, but expression is what, 15 is expression, a minus 10 is expression, a plus 3 is expression, b is greater than 5 is a expression, but the whole line, that is a statement, that is a statement। देखो ये ना थोड़ा सा ऐसा हाईलाइट सा है, हाईलाइट को ये पॉइंट कर रहा है स्टेटमेंट ना, राइट, हाईलाइट वाले पार्ट को ये पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन वाले कहाँ पे पॉइंट कर रही है, पर्टिकुलरली दिस थिंग्स, राइट, पर्टिकुलरली दिस थिंग्स। ओके, सो इससे पता लगता है कि एक्सप्रेशंस क्या है, जो इसमें वैल्यू है, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है 15, इस वेरिएबल के अंदर a माइनस 10 दैट इज एक्सप्रेशन, a प्लस 3 इज एक्सप्रेशन, b ग्रेटर देन 5 इज एक्सप्रेशन, बट द होल लाइन दैट इज ए स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्टेटमेंट को क्या बोले, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, नथिंग एल्स। ओके, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। कमेंट्स, next we have is comments, which are additional readable information to clarify the source code। अभी देखो, हाँ, few days back I have joined a competition, DDC, drink derived code, right? Okay, drink derived code। so drink derived code में क्या हुआ था, 12 मिनट्स दिए गए थे, कोडिंग करो वहां पे। अभी वहां पे कैसे कैसा था सिस्टम कि मैं and my partner was Shivam right at that time। So Shivam was sitting in front of me and I was sitting in front of him।
ओके, वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो उसके बाद क्या हुआ, लैपटॉप एक ही है, वी हैव 12 मिनट्स टू कोड वन प्रोग्राम। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मैं 3 मिनट्स कोड करूंगा, उसके बाद उन 3 मिनट के बाद नेक्स्ट 3 मिनट्स ही विल कोड, उसके बाद नेक्स्ट 3 मिनट आई विल कोड, एंड फॉर द लास्ट 3 मिनट ही विल कोड अगेन। बट ईच बीच में हम लोग बात नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि क्वेश्चन क्या है, एंड आई कैंट इवन सी, जब लैपटॉप उसके पास है आई कांट इवन सी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट माइट बी द क्वेश्चन, आई कैन नॉट। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ, हम लोग को कम्युनिकेट करना था कि क्या था उस कोड में, उसने क्या लिखा है और मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है कि नहीं। तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए होगा, कमेंट्स, राइट। व्हेन यू विल जॉइन ए लाइक गुड कंपनी में भी आफ्टरवर्ड्स, तो तुम लोग ग्रुप्स में काम करोगे, एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, सो यू विल राइट वन पार्ट ऑफ द कोड, ही विल राइट वन पार्ट ऑफ द कोड, द अदर वन विल राइट अनदर पार्ट ऑफ द कोड। सो उसमें क्या होगा कि तुम अपने पार्ट ऑफ कोड को समझा रहे हो दूसरे बंदे को। ठीक है, उसके लिए अब देखो तुमको पढ़ना पड़ेगा पूरा, अच्छा ये ऐसे ऐसे लिखा, अच्छा ये मैंने वो लिखा था, ऐसे बोलोगे पढ़ने के बाद। सो इट्स बेटर कि हम लोग ऐसे हैशटैग दे के ना कुछ लिख ले, एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ये बस लिखा होगा वहां पे, ये कुछ नहीं करेगा, दैट्स इट। ये बस जो अगला बंदा है उसको समझाएगा, अच्छा तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि हियर आई एम टीचिंग arithmetic operators, राइट, arithmetic operators। सो मैंने बस ये बताया कि अभी अगर देखो, अभी मैं चला जाता हूँ यहाँ से, एंड आई गिव शिवम कि तुम कंटिन्यू करो नेक्स्ट। सो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे क्या पढ़ा रहा था, अच्छा ये arithmetic operators पढ़ा रहा था, दैट्स इट। सो दिस इज ए कमेंट, दिस इज नोन एज कमेंट। ठीक है, एंड कमेंट किससे स्टार्ट होता है, एक हैशटैग से स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन के भी होते हैं। ठीक है, डबल लाइन का सिस्टम अलग है, मल्टी लाइन कमेंट्स दैट कैन बी आइदर ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स और मल्टीपल हैशटैग। मल्टीपल हैशटैग यूज कर लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इतना दिमाग में जोड़ने के कुछ फायदा नहीं है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस व्हिच आर नेम्ड कोड सेक्शंस। अभी देखो, तुम ना अपने प्रोग्राम को ना एक नाम, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये किया कि मैं देख रहा हूँ एक लिस्ट में, लिस्ट मतलब एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, उसमें अलग अलग नंबर्स है, उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये मुझे ढूंढना है, ऐसा एक मैंने प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम को मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन से दैट दिस इज दिस नेम्ड फंक्शन, इस नाम का ये फंक्शन है, एंड आफ्टरवर्ड्स मैं उस फंक्शन को बुला के मैं ये काम करवा सकता हूँ, एंड आई डोंट हैव टू राइट दैट प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द फंक्शन। फंक्शन जैसे कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, देखो हाँ, अभी अगर मैंने ये बोल दिया कि जस्ट सेकंड, अभी अगर यहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, you don't need to know about list right now, but I'm just showing कि फंक्शन क्या होता है। इसमें फोकस मत करो कि अच्छा ये तो ब्रैकेट्स आ गए, क्या है, कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, दैट्स इट। सीक्वेंस तो तुमने पढ़ा है मैथ्स में, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ओके, सो इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में क्या हो रहा है, अब देखो मैंने अगर लिख दिया कि मैक्स ऑफ एक्स, मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, इसमें क्या आया, 5 आया, मैक्स ऑफ एक्स। आई वांट टू प्रिंट मैक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें मैंने बस मैक्स फंक्शन यूज कर दिया, मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने एक्स डाल दिया। एक्स के अंदर क्या था, ये पूरा एक लिस्ट था, एंड दिस लिस्ट वेंट इनटू मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने इस एक्स को डाल दिया, इसका मतलब ये है कि ये पूरा लिस्ट मैक्स फंक्शन के अंदर आ गया, एंड मैक्स हैव सीन कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, एंड उसी को उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। बट द थिंग इज, ये मैक्स फंक्शन कैसे, इसको कैसे पता चला कि ये 5 सबसे बड़ा है, इसको कैसे कैसे पता चला कि ये 5 सबसे बड़ा है। सो देयर इज सम कोड बिहाइंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर कुछ कोड है, जिस कोड से, जो कोड रन हो रहा है बिहाइंड द बैक, एंड उससे उसको पता चला कि 5 बड़ा है, एंड दैट ही हैव रिटर्न दैट 5 इज द बिगेस्ट, द मैक्सिमम नंबर, एंड उसके बाद वो 5
प्रिंट हो गया। सो ऐसे फंक्शन, ये मैक्स फंक्शन तो ये कंप्यूटर में ऑलरेडी है। सो ऐसे फंक्शन ना हम भी बना सकते हैं। सो दिस इज अ फंक्शन, नथिंग एल्स। ओके। सो ब्लॉक्स और सूट्स, ये इतनी जरूरत नहीं है इस चीज की। ओके। हम लोग ने ये चीज पढ़ लिया एंड आई थिंक वी आर डन विथ इट, राइट शिवम? ओके। सो आज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा भी कवर करने नहीं आए थे। वी आर जस्ट बिगिनिंग टुडे एंड वी हैव, I know there are very few days left and few of you are very demotivated. Most of them have told me कि मतलब कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसा वैसा। बट लेट मी जस्ट टेल यू, आई थिंक मे बी इस बार रिटन एग्जाम होगा, if I'm not wrong. So if that happens, then I don't think it is going to be that hard. I don't think that it is going to be that hard. So stay cool, give your best. अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, अगर एग्जाम्स में मार्क्स ना भी आए, so you'll do better in better later. ठीक है? So with that, I will like let Shivam Rai to speak his words for 2 minutes. All to Shivam. Python is one of the most beginner friendly languages. अगर आपको इसका एक बार लॉजिक समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, इट इज द मोस्ट इजी लैंग्वेज। अब हमने आपको एक सिलेबस भेजा था, आप एक चीज नोटिस करेंगे तो सिलेबस के 2 दिन का हमने एक ही दिन में किया है, एंड इट वाज द मोस्ट इजी टॉपिक्स, द बिगनर। सो अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, अगर आपके ये बेसिक क्लियर हो गए हैं, तो आपके आगे का अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो वी विल ऑर्गेनाइज वीकली डाउट सेशंस। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कुछ फीडबैक देना है, तो प्लीज अप्रोच अस। आप जानते हैं हमें कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है। वी हैव लिस्टेड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। So with that, thank you so much. And at the end, I would love to say कि आप लोग के अगर फ्रेंड्स भी कोई है जिसको मतलब पाइथन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और मे बी समथिंग लाइक दैट, वी हैव रिकॉर्डेड द होल सेशन, वी विल शेयर द यूट्यूब लिंक एज वेल। उन लोग को वो भेज देना एंड अप्रोच देम कि वो लोग भी ज्वाइन करे, सो दैट लाइक सबका भला हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, बट आई थिंक सबको मिलना चाहिए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। And at the end, I would like to say that remember, this is not just another course. This is a movement to make sure learning in India begins with understanding and not execution. So let's code the future in our own language. Thank you.